بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك في كتاب مجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من ربكم وبرهان صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک اعلان فرماتے چلیے کہ 10 سفر کو دن 2 بجے اسی امام بارگاہ میں بسلسلہ شہادت جناب سکینہ سلام اللہ علیہا مجلس اعزا ہے. آپ سب سے پر وقت تشریف آوری کی استعداد ہے. 2 بجے خورشید شرف برج شرف میں ہوگا. یہاں پہ خورشید کہہ رہے ہیں سورج کو کہ سورج جو ہے وہ اپنے مقام برج میں ہوگا. خورشید شرف برج شرف میں ہوگا جوہر آدم میں در صدف میں ہوگا. صحابہ کی مجلس ہے اس لیے اس کا چناؤ کیا ہے. جوہر آدم میں در صدف میں ہوگا. مشرق میں یا مغرب میں اسے دفن کرو. مشرق میں یا مغرب میں اسے دفن کرو. عاشق حیدر ہے نجف میں ہوگا. صلوات پڑھ لیجئے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جاگیر و جسم و جاں سے قضا کو اتار دوں. جاگیر جسم و جاں سے قضا کو اتار دوں. پل میں سروں کا بوجھ بدن میں اتار دوں. عباس نے کہا اگر اذن جہاد دیں. عباس نے کہا اگر اذن جہاد دیں پاؤں کی ٹھوکروں میں لشکر کو مار دوں. تمام تر حمد و ثنا ہے پروردگار کے لیے. وہ پروردگار جو علی کل شیء قدیر ہے. وہ پروردگار جو رحمان ہے جو رحیم ہے. وہ پروردگار جو غفار الذنوب ہے. وہ پروردگار جو غفور الرحیم ہے. وہ پروردگار جو جبار اور قہار ہے. وہ پروردگار جو رحم کرنے والا ہے مہربان ہے خالق علی کل شیء قدیر ہے. اور درود و سلام ہے محمد و آل محمد کے لیے جو لائق درود و سلام ہے. عاشقان حیدر کرار اپنے دلوں میں عشق حیدر کی ٹھنڈک محسوس کرنے والوں. اپنے دلوں میں محبت حسین کی حرارت رکھنے والوں. قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم من ربکم وبرہان. تمہارے رب کی طرف سے سورہ نساء کی یہ آیت ہے آیت نمبر 174. اللہ ارشاد کر رہا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان آ گیا ہے. برہان کسے کہتے ہیں؟ توجہ چاہتی ہوں. گرمی کی شدت ہے لیکن تھوڑی توجہ کریں گے تو مجلس کا لطف لے پائیں گے. تمہارے پاس کیا آیا ہے؟ برہان آیا ہے. برہان کسے کہتے ہیں؟ برہان کہتے ہیں دلیل کو. برہان کہتے ہیں پروف کو. یعنی کسی چیز کو سمجھانے کے لیے جو دلیل دی جاتی ہے اسے برہان کہتے ہیں. تھوڑی سی اور توجہ کریں گے تو مطلب دینا آسان ہو جائے گا. پھر سے کہہ رہی ہوں برہان اللہ کی طرف سے آیا ہے. برہان کہتے ہیں دلیل کو. کسی کو کوئی بات سمجھانے کے لیے جو دلیل دی جاتی ہے اسے برہان کہتے ہیں. اب یہاں اللہ کس کو کہہ رہا ہے برہان؟
सब सोए पड़े, थोड़ा सा बेदार होके बैठिए। यहाँ अल्लाह किसको कह रहे हैं बुरहान? अल्लाह के तुम्हारे रब की तरफ से बुरहान आ गया है, दलील आ गई है, प्रूफ आ गया है। परवरदिगार वो बुरहान कौन है, ये दलील कौन सी है, ये प्रूफ कौन सा है? अल्लाह ने कहा जब किसी कोर्ट में जाए अपना दावा लेकर, तो दावा करने वाला जो है वो इस्तदलाल लेकर आता है, दलील लेकर आता है। अगर दलील न हो, वकील जानते हैं ना, और कुछ ना कुछ तो आप भी जानते होंगे कि वो जो वकील है, अगर वो पूछे तुम्हारे पास कोई दलील है, कोई बुरहान है, अगर वो बंदा जो दावा लेकर पेश हुआ है वो कहे मेरे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है, मेरे पास तो कोई दलील ही नहीं है, तो फौरन केस को डिसमिस कर दिया जाता है, यानी दलील के बगैर बात नहीं की जाती। अल्लाह यहाँ कह रहा है तुम्हारे पास रब की तरफ से बुरहान आ गया है, जिसको माँ ने नादे अली पढ़ के दूध पिलाया, ज़बानों को वज़ू करवाना। अल्लाह ने कहा तुम्हारे पास बुरहान आ गया है, तुम्हारे पास दलील आ गई है, तुम्हारे पास प्रूफ आ गया है। परवरदिगार वो प्रूफ है कौन सा, वो दलील है कौन सी, वो बुरहान है कौन सा? अल्लाह ने कहा घबराओ नहीं, अभी बता रहा हूँ। मैं 1,24,000 पैगंबरों को खल्क करने के बाद सरदार अंबिया को भेजूंगा, वो दावा लेकर आएगा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, हैदरी। पाक रसूल की अज़मत पर बुलंदतर सलावत। आकर कहेगा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहिए कि अल्लाह दावा लेकर आए हैं। अल्लाह कह रहा है मेरी तौहीद की जो बुरहान है, जो प्रूफ है, जो दलील है, वो मोहम्मद मुस्तफा है। परवरदिगारा मोहम्मद कौन है? मैंने कहा कि ये जाते मोहम्मद जो है, कुछ लोगों ने इस बारे में एक बात बहुत फैली थी किसी दौर में। उन्होंने कहा था कि मोहम्मद हम जैसा, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, कि मोहम्मद हम जैसा। मैं उनसे एक बात कहते हुए अपने मजलिस को ज़ीनत दूं कि बुरहान है अल्लाह की तौहीद पर दलील को, प्रूफ को कहते हैं बुरहान, जो अल्लाह की तरफ से आया है। अब कह रहे मोहम्मद हम जैसा। मैंने कहा पहले तुम ये तो बताओ कि मोहम्मद है क्या? पहले तुम ये तो बताओ कि ज़ाते मोहम्मद है क्या, मकामे मोहम्मद है क्या? मैंने कहा मकामे मोहम्मद को समझना तो दूर की बात है, हम तो ये नहीं समझ पाए हैं कि इसमें मोहम्मद की अज़मत क्या है। ज़ाते मोहम्मद का मकाम समझना तो दूर की बात है, लोग तो इस बात को नहीं समझ पाए कि इसमें मोहम्मद की दलील क्या है। मैंने कहा इसमें मोहम्मद की दलील क्या है ये बता दे। कहा कि मोहम्मद किसे कहते हैं? अच्छा, इससे पहले अल्लाह किसे कहते हैं? अल्लाह कौन है? वो जिसकी सारा जहान तारीफ करता है, पूरी कायनात उसकी। जाकर बैठिएगा, मैं आपको लोरी नहीं सुनाऊंगी जो आपको नींद आ जाए, थोड़ा सा बेदार होकर बैठिएगा। मैं जगाने वाले आपको जुमला दूंगी और आपने इसमें मुझे दवा देनी है, दवा के साथ साथ दुआ भी देनी है। दवा इसलिए कह रही हूँ कि जिक्र अहले बैत दवा है, दुआ इसलिए कह रही हूँ कि आपकी तरफ से ये मोहब्बत है जो आप दुआ की सूरत में देते हैं। सबसे बड़ी तो सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। अल्लाह क्या है जिसकी तारीफ पूरी कायनात कर रही है, और अल्लाह का एक नाम है महमूद। महमूद कहते हैं जिसकी पूरी कायनात तारीफ करे, यानी कायनात का जर्रा जर्रा, आसमान से लेकर जमीन तक जिसकी तारीफ करे, सूरज चांद सितारे जिसकी तारीफ करे, जमीन का जर्रा जर्रा जिसकी तारीफ करे, हवाओं में फैली हुई चीजें जिसकी तारीफ करे, समंदरों में मौजूद जानवर जिसकी तारीफ करें, सूरज की रोशनी की जो सामने आ जाती, शुआओं के सामने जो चीजें आ रही वो उसकी तारीफ करे, जन्नत में जो मौजूद है उसकी तारीफ करे, जो चीज भी कायनात में खल्क हुई है सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो महमूद किसे कहते हैं? जिसकी तारीफ की जाए, जिसकी बहुत तारीफ की जाए, जिसकी तारीफ की जाए, तवज्जो चाहते हो, जिसकी तारीफ की जाए उसे कहते हैं मोहम्मद। कायनात
सलावत। हम तो इसमें मोहम्मद को नहीं समझ पाए, मकामे मोहम्मद तो दूर की बात है। मैंने कहा अच्छा ज़ाते मोहम्मद को समझना है, थोड़ा लुत्फ लेंगी आप, थोड़ा सा मेरे साथ बोलते आएंगी तो मजलिस में लुत्फ मिल जाएगा, अगर नहीं बोलेंगी तो महरूम रह जाएंगी उस लुत्फ से जो लुत्फ मैं बांट रही हूँ, जो लुत्फ आप ले रही हैं। अच्छा एक बात कहकर आगे चली जाऊँ कि ये जो हम जिक्र करने आते हैं इसमें मैं बारहा ये बात कह चुकी हूँ और अब फिर से कह रही हूँ कि यहाँ बैठने वाले से ज्यादा इज्जत वहाँ बैठने वाले की है। फिर से कह रही हूँ, दलील है मेरे पास, यहाँ बैठने वाले से ज्यादा इज्जत और एहतराम वहाँ बैठने वाले की है। आप मुझसे पूछे क्यों? यहाँ बैठा जाता है कि बीबी ने ड्यूटी लगाई, यहाँ बैठना है, यहाँ बैठ के बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ बैठने से बेहतर वो जगह है। क्यों? इसलिए कि सुनने वाले में फातिमा भी है, रसूल भी है, इसलिए फर्श अज़ा की अजमत ज्यादा है। यहाँ बैठने वाले से वहाँ की अजमत ज्यादा है, वहाँ का मकाम ज्यादा है। मैंने कहा ये मोहम्मद अल्लाह कह रहा उसे कहते हैं जिसकी तारीफ खुद महमूद करे। मैंने कहा ज़ाते मोहम्मद के बारे में एक सवाल कर लिया जाए। जो है सोए तो नहीं बैठे। मैंने कहा ज़ाते मोहम्मद के बारे में एक तारीफ, एक बात कर ली जाए, तारीफ कर ली जाए, बयान दे दिया जाए, बात कर ली जाए। लेकिन ज़ाते मोहम्मद क्या है? फिर मकाम मोहम्मद को देखेंगे। पहले है इसमें मोहम्मद, फिर है ज़ाते मोहम्मद, फिर है मकामे मोहम्मद। पहले समझा इसमें मोहम्मद क्या है, यानी महमूद जिसकी तारीफ कर रहा है उसे मोहम्मद कहते हैं। अब मैंने कहा कि ज़ाते मोहम्मद, मोहम्मद क्या है, मोहम्मद कौन है? लोगों ने कहा हम जैसा। मैं कहती हूँ तुम जैसा कैसे? अल्लाह ने कायनात को बनाया, कायनात को बना के 1,24,000 पैगंबर बनाए, नबी बनाए। उन नबियों में से अल्लाह ने 313 को अलग कर लिया। जो पहुंच गई मेरा सलाम है, जो नहीं पहुंचे आओ चलते हैं। जो 1,24,000 नबियों में से अल्लाह ने 313 को अलग कर लिया। कहा देखो कोई भी किसी के बराबर नहीं है, मुकायसा न करो, एक दूसरे के साथ मिलाओ नहीं। कायनात की कोई चीज किसी के बराबर नहीं है, हत्ता के नबी भी बराबर नहीं है, हत्ता के दिन भी बराबर नहीं है, महीने भी बराबर नहीं है, सालें भी बराबर नहीं है। मेरे पास दलीलें हैं, दलीलें भी दोगे, लेकिन सुन लीजिए, सर उठाइए। मैंने कहा 1,24,000 नबियों में से अल्लाह ने 313 को अलग कर लिया और उन 313 को कहा कि ये 313 उन 24 और सारे नबियों के बराबर नहीं है। फिर अल्लाह ने उन 313 में से 5 को अलग कर लिया, कहा ये 5 उन 313 के बराबर नहीं है। 313 खुदा सलामत रखे या अली कहने वालों को। बस यूं ही जिक्र अली करते रहिए और अपनी जिंदगियां सजाते रहे। कहा कि वो 313 जो हैं वो इन 5 के बराबर नहीं है। फिर अल्लाह ने उन 5 में से एक को अलग कर लिया, कहा ये 4 भी उस एक के बराबर नहीं है। अब ये 4 उस एक का मुकाबला नहीं कर सकता। अब उस एक ने अपने हाथों में किसी को उठाया, उठा के कहा मन कर तुम्हारा बहादुर अली 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 या अली या अली अल्लाह ने कहा कि ये 4 भी उस एक का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अभी ये सफर का महीना चल रहा है, आगे रबीउल अव्वल का महीना आए, जब ये जुमला याद आए तो दुआ देना। जब आप देखेंगे जुलूस निकल रहे हैं, जब आप देखें कि झंडे लग रहे हैं, जब आप देखें कि ऐलान हो रहे हैं ईद उल मिलाद
नबी का। तो अगर ये जुमला याद आ जाए तो दुआ देना। अल्लाह ने कहा ये एक भी उन 4 के बराबर नहीं है। मैंने कहा मोहम्मद है क्या? अल्लाह ने कहा मोहम्मद नूर है। सुभान अल्लाह, मोहम्मद नूर है। वापस चलिए, कुरान में अल्लाह ने कहा कि इंसान को अल्लाह ने मिले जुले नुतफे से पैदा किया। बेशक, तवज्जो चाहती हूँ। बिस्मिल्लाह। अल्लाह ने इंसान को नजिस चीज से पैदा किया। बेशक, सब जानते हैं अल्लाह ने इंसान को नजिस चीज से पैदा नहीं। इंसान की इब्तिदा क्या है? निजासत। इंतहा क्या है? मैंने कहा ठीक है इंसान है नजिस, इस बात को याद रखिएगा। अभी बताऊंगी मैंने ये क्यों कहा कि नजिस है, इब्तिदा भी इंतहा भी। मैंने कहा मोहम्मद क्या है? कहा मोहम्मद नूर है। मोहम्मद नूर है। मैंने कहा हर बंदा दूसरे के सुल्ब में रहता आया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा ये नबियों के सुल्ब कहाँ थे? नबियों के सुल्बों में किस नबी को किसके सुल्ब में रखा? कहा नहीं मैंने नबियों को ऐसे नहीं पैदा किया। तो जो चाहती होगा ऐसे नहीं पैदा किया है। मैंने कहा नबियों को सलाम पढ़िए मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वाले जी का सलावत पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी सलावत पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कहा नबियों को मैंने ऐसे नहीं बनाया है, मैंने नबियों को ऐसे नहीं खल्क किया है। मैंने कहा फिर कैसे? कहा कि नूर है मोहम्मद और मोहम्मद के माथे पर जो पसीना आता रहा है। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। थोड़ी तवज्जो चाहती हूँ। कहा मोहम्मद की पेशानी पे जो पसीना आया उनके कतरात उतरते थे और मैं नबियों को खल्क करता गया। सारे नबी मिलकर भी मोहम्मद का मुकाबला नहीं कर सकते। मोहम्मद जैसे नहीं है। सारे नबी मिलकर भी, सारे नबी मिलकर भी एक मोहम्मद का मुकाबला नहीं कर सकते। मोहम्मद जैसे नहीं है। मोहम्मद का मुकाबला नहीं है। सारे नबी किससे बने? मोहम्मद के पसीने से। मोहम्मद के पसीने से खुद मोहम्मद अल्लाह के नूर से। मोहम्मद के पसीने से नबी बने, अल्लाह के नूर से मोहम्मद बने, अल्लाह के नूर से मोहम्मद बने। सारे नबी मोहम्मद के पसीने से बने। तब सारे नबी मिलकर भी एक मोहम्मद का मुकाबला नहीं कर सकते। उन जैसे नहीं है। फिर निजासत का पुतला कैसे मोहम्मद जैसा? बेशक, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। पाक रसूल की अजमत पर बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब सब मिलकर भी मोहम्मद जैसे नहीं है बेशक, तो फिर तुम कैसे आहा, नबी जैसे बन गए? बेशक। नबी जैसा कौन है जो नबी जैसी बातें करे? मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं एक मिसाल देकर मंजिल मसाइब पर, बिस्मिल्लाह। ये यहाँ बैठकर यानी मैं यहाँ से चली जाऊँ, आहा, कोई काम पड़ जाए आहा, या कहीं जाना हो, मैं यहाँ चली जाऊँ तो यहाँ किसको बिठा कर जाऊंगी? अपने जैसे। जो मुझ जैसा कम से कम बोलता तो हो। आहा, अभी नहीं समझी। वाह, वाह। जिसको बोलना नहीं आता मैं उसको यहाँ नहीं बिठाऊंगी। आप कहेंगे आपने जाना था तो चली जाती, कम से कम बिठा दो तो उसको जाती जिसको आज जैसा बोलना आता होगा। आप मोहम्मद जा रहे हैं अल्लाह की तरफ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ाहिरी तौर पे मोहम्मद जा रहे हैं, ज़ाहिरी तौर पर मोहम्मद जा रहे हैं। लोगों ने कहा, जब हमने कहा, लोगों ने हमसे पूछा मोहम्मद को क्या मानते हैं? हमने कहा मोहम्मद जिंदा है। अच्छा, लोगों ने कहा, जब हमने कहा सलाम अलैका या नबी अल्लाह, तो लोगों ने हम पर एतराज़ किया। कहा देखो मुर्दा पर सलाम नहीं होता। मैं आपको मिसाल दूँ, किसी का कोई दोस्त मर जाए, कोई रफ़ीक मर जाए, तो वो आकर उसे सलाम करे, उसकी मैयत के सामने खड़ा हो जाए और कहे अस्सलाम अलैका या हबीबी, अस्सलाम अलैका या रफ़ीकी, अस्सलाम अलैका। मेरे प्यारे दोस्त मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा, तुम पर मेरा सलाम हो। तो जो पास खड़े हैं वो उसको हिलाएंगे और हिलाकर कहेंगे वो मुर्दा है। मुर्दों पर सलाम नहीं होता। बात ही पूरी कर दी आपने। मुर्दों पर सलाम नहीं होता। गली में कहते हो मुर्दों पर सलाम नहीं होता, मस्जिद में जाते हो नमाज खत्म होने के बाद कहते हो अस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह अय्युहन नबी, अस्सलाम अलैका या अय्युहन नबी। वहां तुम नबी पर सलाम भेज रहे हो, गली में आते हो कहते मोहम्मद
تک دلیل باقی رہتی ہے دعویٰ باقی رہتا ہے. یاد ہے جہاں سے شروع کی تھی بات کہ اللہ نے کہا یہ برہان ہے, یہ پروف ہے, یہ دلیل ہے. جب تک لا الہ الا اللہ ہے, جب تک محمد رسول اللہ ہے, اللہ کی توحید باقی رہے گی. جب تک اللہ کی توحید ہے, محمد رسول اللہ باقی رہے گا. اور محمد پر سلام ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب نے پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. لیکن جب جانا ہے تو اس سے پہلے کچھ تیاریاں کرنی بہت ضروری ہے. میں چند جملے موت پر, کیونکہ سارے ثواب کی مجلس ہے, اس لیے کہ ہم جو اپنے زبان سے ادا کرتے ہیں استغفار سب سے بڑی بات ہے. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو تسبیح بہت تیز تیز چلا رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک دو بار کسی کو کہا بھی ہے کہ دیکھیے لفظ جو ہے اس کو پورا ادا کیجیے. اتنی جلدی تو کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا نا, جیسے ایک دو دانے پھینکتے جائیں اور جلدی جلدی پڑھتے جائیں. کم از کم زبر زیر کا خیال رکھیے. اب ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں استغفار استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, زبان سے کہہ رہے ہیں, لیکن کردار سے یعنی اپنے ذات سے ہم منافقت کر رہے ہیں. زبان سے ہم کچھ کر رہے ہیں, کردار سے کچھ کر رہے ہیں. تو جب ہم مریں گے تو تمام حالات کھل کر ہمارے سامنے آ جائیں گے. استغفار کے کچھ مرحلے ہیں جن میں سے ایک دو آپ کے سامنے. استغفار جب کرنا ہے تو پھر خالص نیت کے ساتھ کرنا ہے, زبان پہ پورا ادا کرنا ہے. آپ کو خود ہی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہہ تو رہی ہیں, دیکھنے والا بھی سمجھ رہا ہے ماشاءاللہ بہت متقی ہیں, تسبیح پڑھ رہی ہیں, متقی ہیں, بہت پرہیزگار ہیں ماشاءاللہ, ہر وقت ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے. اس سے بہتر ہے کہ تسبیح نہ پکڑیں. زبان تو پاک ہے, ہر وقت آپ زبان سے پڑھتے رہیے. آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے, آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے. اس میں کسی کا کوئی لنک نہیں, کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اللہ کو گواہ بنا کر استغفار کیجئے, خدا قبول کرے گا. دوسرا یہ کہ کیا آپ استغفار جو کر رہی ہیں وہ اندر سے کر رہی, کردار سے کر رہی ہیں, کہ جس بات سے منع ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ دوبارہ پلٹ جاتی ہیں اس کی طرف, تو استغفار قبول نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ نے جس جسم کے ساتھ گناہ کیا ہے, جو وجود آپ کا گناہ کی وجہ سے بڑا پلا ہے, جب تک یہ آپ کے جسم پر ہے تب تک توبہ قبول نہیں ہے. مولا کا فرمان ہے کہ اس کو اتنی عبادت کرو, اتنی عبادت کرو کہ عبادت کرنے کی وجہ سے آپ کو اذیت ہونے لگے. مطلب اتنی اذیت دو عبادت میں اپنے آپ کو, تمہاری ہڈیوں کے ساتھ تمہارا گوشت مل جائے, پھر تم استغفار کرو. ذرا مشکل ہے کہنا اور کرنا, صرف دو جملے میں نکالے ہیں, بہت مشکل ہے. تہے دل سے استغفار کیا کیجئے تاکہ آنے والے مراحل جو ہے وہ ہم پر آسان ہو جائیں. یہ وجہ ہے کہ ہم مجلس میں آتے ہیں اور اس کا بہت بڑا مقام ہے. آل محمد کی محبت آپ کو آخرت میں فائدہ دے گی, شفاعت کریں گے بی بی آپ کی, آل محمد آپ کی شفاعت کریں گی. لیکن اعمال دیکھ کر کیا آپ کے اعمال اس طرح تھے کہ آپ جن سے محبت کرتی ہیں ان جیسی اعمال بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر ان جیسے اعمال ہیں تو بی بی شفاعت کریں گی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ آ جائے اور آ کے کہے کہ میں نماز بھی نہیں پڑھتا اور میں یہاں بیٹھ کر جو ہے حسین کا مقام بھی کرتا ہوں. حسین کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. حسین کون ہے؟ جس نے اپنا سر کٹا دیا ہے نماز کے خاطر. جناب زینب سلام اللہ علیہ کو دیکھیے, بیوی درباروں میں جا رہی ہے, شام کے بازاروں میں گئی ہے, لیکن بیوی کا پردہ دیکھیے, بیوی کا کردار دیکھیے, کیسے کیسے درس دے گئی بیوی. ہم جو ہدف لے کر آئے ہیں وہ ہے رونا.
آپ کا گرا ہوا ایک ایک آنسو بہت فضیلت رکھتا ہے. کیا اچھا ہو کہ سیرت محمد و آل محمد پہ چلتے ہوئے یہ آنسو گرے تاکہ اس کی عظمت میں اور اضافہ ہو جائے, تاکہ اس کی جو ہے درجات میں اور بلندی ہو جائے. قارئان عزیز, آگے چلتے ہیں کربلا. ساری رات ایک شہزادی اپنے بابا کے سینے پر سو کر الہام کو اپنے سینے میں جگہ لیتی ہے. آنے والے وقت میں جو ہونا ہے وہ الہام کی صورت میں بی بی تک پہنچ رہی ہے. ساری رات بی بی اپنے بابا کے سینے پر سو کر یہ الہام جو ہے یہ منتقل ہو رہا ہے بی بی کی طرف, سینہ بسینہ. عاشور کا دن آیا, جنگ ہونے لگی اور ایک ایک جا رہا ہے اور واپس نہیں آتا. حسین گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور آخری مرتبہ سلام کیا. سلام کرنے کے بعد اجازت طلب کی اور چلے. میدان کربلا میں آئے اور جنگ شروع کی. کئی یزیدیوں کو فرنار کیا اور پھر ایک صدا گونجی, حسین کو گھوڑے سے گرا دو. حسین کو گھوڑے سے, روایت میں ہے اگر آپ یہ جملہ سن لیتے, یہ شور سن لیتے جو کربلا میں عصر عاشور گونج رہا تھا کہ حسین کو گھوڑے سے گراؤ, تو حسین سے محبت کرنے والا کبھی اپنی زندگی میں مسکراتا بھی نہ. میرا سلام اس بی بی پہ جس نے یہ شور سنا ہوگا. اس بی بی پہ کیا گزری ہوگی جو اپنے بابا کی لاڈلی ہے. نماز شب کی دعاؤں میں بابا نے جسے خدا سے دعائیں مانگ مانگ کر لیا, پروردگار مجھے ایک بیٹی عطا کر جو میرے دل کا سکون ہو. اس بیٹی پر کیا گزری ہوگی, اس بہن پر کیا گزری ہوگی جس کا بھائی مارا جا رہا ہو اور لوگ صدا بلند کر رہے ہو, پھر ایک دو مارنے والا نہ ہو, ہزاروں مارنے والے ہوں اور صدا گونج رہی ہو حسین کو گھوڑے سے گرا دو. کیسا غربت کا عالم ہوگا. آنکھیں بند کیجئے نا, کربلا کا تصور کیجئے. آپ کے سامنے ایک گھوڑا ہے اور گھوڑے پر ایک سوار بیٹھا ہوا ہے اور تمام صدا بلند کر رہے ہیں حسین کو گرا دو, حسین کو گرا دو. یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے, فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہے. گھوڑے سے جب زمین پر آ رہا ہے لیکن اتنا زخمی ہے حسین, اتنا زخمی ہے کہ جب گھوڑے سے زمین پر آ رہا ہے تو تیروں پہ معلق ہو گیا حسین, تیروں پہ معلق ہو گیا ہے. فاطمہ زہرا کی گود اجڑی ہے بڑے عجب انداز میں. ایک بیٹا تیروں پہ معلق تھا, ایک کے جنازے میں تین تھے. اجرکم اللہ. خدا آپ کی زبان آوازوں پر رحم کرے, خدا آپ کی آنکھوں پر رحم کرے. آپ حسین کی محبت میں گریہ بلند کرتی ہیں, خدا آپ کی مشکلات آسان کرے, مرحوم کے درجات میں بلندی عطا کرے. حسین کو گھوڑے سے گرا دو. روایت میں ہے کہ میرے آقا نے زلزلہ سے کہا, زلزلہ گھٹنے ٹیک دے. اس سے بڑی غربت کیا ہوگی حسین کو, اس سے بڑی اور غربت کیا ہوگی. حسین نے زلزلہ سے کہا, زلزلہ گھٹنے ٹیک دے. زلزلہ نے گھٹنے ٹیک دیے اور حسین زین سے زمین پر آ گئے. اتنے میں حسین کا یہ گھوڑا تیز تیز بھاگ رہا تھا, تیروں کو اپنے جسم پر لیتا تھا, آقا کی حفاظت کرتا تھا. عمر سعد نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے تک لے آؤ, مجھ تک لے آؤ. میں نے اپنے بچپنے میں دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اس پر بیٹھے تھے. میں کہتی خدا تجھ پہ لعنت کرے, گھوڑے پر بیٹھے ہوئے رسول تو تیرے سمجھ میں آ گئے, تمہیں پتا چل گیا گھوڑے کی عظمت کیا ہے. بیٹھے ہوئے دیکھا رسول اس گھوڑے پر, تمہیں یہ نہیں دیکھا کہ ایک مرتبہ حسین بھی رسول پر سوار تھے. حسین بھی رسول پر
इर्द गिर्द घूम रहा है। उम्र साथ के लोगों ने इसे पकड़ना शुरू किया। 70 से ज्यादा लोगों को जुल्झना ने जख्मी कर दिया। उम्र साथ ने कहा छोड़ दो, इसको ऐसे ना पकड़ो, देखते हैं घोड़ा करता क्या है। लेकिन जब ये घोड़ा अपनी हिफाजत कर रहा था, खुद को बचा, बहुत बड़ा जुमला देना चाह रही हूँ भाइयों वाली बहनें, मेरा जुमला जाया ना करें, बीबी को पुरसा दे उसके उस गरीब भाई का जो करबला में मारा जा रहा है। खुदा हाथ जोड़ के कह रहे हो, अल्लाह आपके बेटों को भाइयों को सलामत रखे। अपने जवानों के सदके में जुमले की कदर कीजिएगा कि जब घोड़ा अपनी हिफाजत के बाद वापस आया तो बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी। जब ये घोड़ा वापस आया तो कलमे हुसैन कट चुका था, कटी हुई गर्दन से खून निकल रहा था। घोड़ा करीब आया, करीब आके अपने सर और खून में गुलशन किया। अब घोड़े ने इधर उधर देखा, क्या करूं? घोड़े को समझ में आई कि अब वापस चला जाओ, जाकर बताऊं तो सही, मैंने जुमला कह दिया, आपने सुन लिया। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे किसी बहन का भाई मारा जाए। लेकिन जब भाई के मरने की खबर आती है, आज खुदा आपकी आवाजों पर रहम करे, जब मरने की खबर आती है किसी भाई के, बहन कैसे सुनती है? सुल्ताना ने अपने आप को घोड़े ने खून से गुलशन किया। अब ये चला है खेमे की तरफ। अब इसने देखा घोड़ा एक के खेमे में जाता है, वापस चला आता है, एक के खेमे में जा रहा है। अब उस खेमे में गया जहां सकीना थी। बहुत बड़ा जुमला दिया मैंने आपको, कदर कीजिएगा। उस खेमे में गया जहां सकीना थी। इसने जाके अपने पाँव मारने शुरू किए, ऐसे जैसे मातम कर रहा हो। इसने पाँव मारने शुरू किए। सकीना ने समझा कि बाबा आ गए हैं। सकीना बाहर आई, आकर देखा ज़ीर डली हुई है, चेहरा जो जनाबे लहू है। सकीना ने बड़ी हिम्मत से इत्मीनान से पूछा, ए सुल्ताना ये बता दे, जब गला काटा था पानी भी आया था? मेरे बाबा को पानी पिलाया था। ये जुल्झना जब वापस आता है, एक एक लाशें को सुनता है, छोड़ देता है, एक एक लाशें को सुनता है, छोड़ देता है। देखने वाले देखते रहे ये क्या कर रहा है, एक एक लाशें को सुन रहा। आखिर आ गया उस लाशे तक जो हुसैन का लाशा था। जुल्झना ने सोचा, जुल्झना ने रोना शुरू किया। मैं कहती हूँ जानवर अज़मत हुसैन को समझ गए। मुसलमान जानते थे ये नवाज़ा रसूल है, मुसलमान जानते थे इसके जिस्म में चीरे फातिमा है। मुसलमानों ने कदर न की, 10 लोगों को मुंतखब किया गया। कहा तुम हुसैन के लाशे को पामाल करना। खुदा के भाइयों को सलामत रखे, मरहूम की दर्जात में बुलंदी अता करे, खुदा उनके सगीरत में मेरा गुनाह माफ करे। कहा तुम हुसैन के लाशे को पामाल करना। उनके घोड़ों को तैयार किया गया, उनके सुनों में लोहे के सुम लगाई गई। बड़े आसानी से चल लिया। अल्लाह के भाइयों को सलामत रखे। ज़ैनब के भाई के सदके में, बीबी के भाई के सदके में अल्लाह की आवाज़ों पर रहम करे। अलग तरीके से लोहे की मेखें लगाकर घोड़े के सुमों को तैयार किया गया। वो घोड़ा जो है सुर्ख घोड़ा, उसका वजन इतना होता था, अगर वो एक पार रख देता था तो कुचल देता था। आज आखिरी जुमला है, ऐसे सुनिएगा जैसे ज़ैनब ने वो जुमला सुना था जब बीवी को खबर मिली कि हुसैन मारा गया है। सुर्ख घोड़ा ये था, ये जब अपना पाँव रखता था, ये एक अलग ही नस्ल का घोड़ा है जो पामाली के काम आया है। ये अपना पाँव रखता है और कुचल देता है। उसके सुनों में लोहे की तीर लगाई गई, लोहे की मेखें लगाएगी। आप घबरा जाएंगे, मक्तल में मौजूद है ये बात, मक्तल की किताब से पढ़ रहे हो कि जब वो उन घोड़ों को घुराया गया, कहते हैं जब घोड़ा पाँव रखता था हुसैन की पसलियां टूटने की आवाज आती।
कबूल कर। जब हुसैन के लाशे को पामाल किया गया, इतना पामाल किया गया, बीबी इतना पामाल किया गया, बीबी तो देख रही थी ना, हम तो पढ़कर रोते हैं, हम तो सुन के रोते हैं, जो देख कर रोती रही। मुसलमानों ने मारो मेरे बच्चकियां बीस के पाला, मुसलमानों ने मारो ये तुम्हारे नबी का नवासा, मुसलमानों ने मारो ये तुम्हारा रहबर है, मुसलमानों ने मारो ये तुम्हारा इमाम है। लोगों ने कदर न की, इतना मारा हुसैन को, सबने मिलके मारा। जिसके हाथ में कुछ नहीं था वो करबला की गलन रेत उठाकर हुसैन की तरफ फेंकता था। इतना जख्मी है हुसैन, जब बीवी आई है तो अपने भाई को पहचान न पाई। परवरदिगार ने रोती हुई आंखों का वास्ता